Hello everyone, welcome back to 6th English class. So, today we will start a very amazing poem, Vocation, written by Ravindranath Tagore. So, in this poem, a child watches different people at work, like hawker, gardener, or watchman. He feels attracted to their job and wishes to become like them because they seem happy and free to move from one place to another. So, this poem shows the innocent imagination of a child. So, let's begin with introduction. On your way to school or market, you see many people at work. Discuss what you have noticed and read this poem aloud with your partner. जब आप स्कूल जाते हो या फिर मार्केट जाते हो तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हो जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, राइट? तो आपने क्या करना है कि इस पोम को अपने पार्टनर्स के साथ जोर से इसको पढ़ना है, ठीक है? सो फर्स्ट आई विल रिसाइट दिस पोम एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school via lane, every day I meet hawker crying, selling bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road they must take, no place he must go to, and no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road and crying bangles, crystal bangles. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house a gardener digging the ground. He does what he likes to do with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet, I wish I were a gardener digging away at the garden and nobody stops me to digging. Just as it gets dark and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely. A street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking at the street all night and chasing the shadow with my lantern. So, ये थी आपकी पोम वोकेशन और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school via lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. अब ये जो पोम है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है और ये इन्होंने एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है. तो एक बच्चा इमेजिन कर रहा है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ एवरी डे, जब मैं 10 बजे मेरे स्कूल की घंटी बजती है और मैं स्कूल जा रहा हूँ तो एवरी डे मुझे कौन मिलते हैं? हॉकर्स मिलते हैं. और वो हॉकर्स क्या कर रहे होते हैं? बैंगल्स बेच रहे होते हैं और वो क्राई करते हैं बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो हॉकर होते हैं जो कि रेहड़ी वाली होते हैं, जो कि गली गली जाके अपना सामान बेचते हैं, राइट? तो उस बच्चे को डेली कौन मिलते हैं? हॉकर्स मिलते हैं जो कि बैंगल्स बेच रहे होते हैं. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must to go to, and no time when he must come home. अब जो हॉकर्स होते हैं उनको किसी भी बात की कोई जल्दी नहीं होती और ना ही कोई ऐसा एक फिक्स्ड एक रोड है, एक पर्टिकुलर रोड है कि उन्होंने डेली उसी रोड से बैंगल्स बेचने जाना है. ना ही कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है कि रोज उनको उसी जगह पे बैंगल्स बेचने जाना है और ना ही उनके घर से जाने का कोई पर्टिकुलर कोई टाइम है और ना ही घर वापस आने का कोई फिक्स्ड टाइम है. तो यहाँ पे
ये जो एक बच्चा है वो इमेजिन करता है कि आई विश, वो एक विश करता है, सॉरी वो विश करता है कि आई विश आई वर अ हॉकर। अब बच्चा बोलता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता और मैं क्या करता, पूरा दिन रोड पे खड़े होके चूड़ियां बेचता। क्योंकि बच्चे को लगता है कि इनकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा फ्रीडम है और इनको कोई भी रोड फॉलो नहीं करना है, सेम रोड फॉलो नहीं करना है, कोई एक प्रॉपर जगह नहीं है कि उन्होंने डेली उसी जगह पे जाना है, ना ही इनके घर आने का कोई टाइम है और ना ही घर से जाने का टाइम है। लेकिन उसको जो अपनी लाइफ है उसमें उसको काफी स्ट्रिक्टनेस लगती है, क्योंकि बच्चे को तो डेली टाइम पे स्कूल जाना है और वापस घर भी टाइम से आना है, और उसका जो स्कूल है वो भी एक फिक्स्ड प्लेस पे है, तो उसको डेली सेम रोड फॉलो करना है, सेम जगह उसको स्कूल जाना है और फिर उसको वापस घर भी आना है, राइट। तो उसको लगता है कि काश मैं भी क्या होता, एक हॉकर होता, एक चूड़ियां बेचने वाला होता, तो मेरी लाइफ में भी कितनी फ्रीडम होती और मेरी लाइफ में भी कितना फन होता। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of my house a gardener digging the ground. अब बच्चा जब स्कूल से वापस घर आता है, राइट, जब वो स्कूल जाता है तब उसको हॉकर्स मिलते हैं। अब जब बच्चा स्कूल से घर आ रहा है तो उसको कौन मिलता है, उसको वो देखता है कि अपने मतलब गेट सॉरी स्कूल सॉरी घर के अपने हाउस के गेट से उसको एक कौन दिखता है, कि गार्डनर दिखता है जो कि गार्डन को डिग कर रहा होता है, अपने मतलब किसी के भी गार्डन को वो खोद रहा होता है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet. अब बच्चे को ये लगता है कि इस गार्डन को भी मजा है, बिकॉज वो अपने स्पेड से, स्पेड क्या होता है, एक डिगिंग टूल होता है, जस्ट लाइक दिस। अब बच्चे को लगता है कि इस गार्डन को भी मजा है भाई, इसकी लाइफ में भी फ्रीडम है, क्योंकि ये जहां मर्जी चाहे अपने स्पेड से कहीं पर भी ये गार्डन को डिग कर सकता है। और ये जो गार्डनर है इसके कपड़े भी मिट्टी से भरे हैं, राइट, और इसको कोई भी डांट नहीं रहा है। तो बच्चा आगे बोलता है कि ये जो गार्डनर है ये कितनी धूप में ही चाहे काम क्यों ना करे, इसके कपड़े चाहे गिले क्यों ना हो जाए, लेकिन इसको कोई भी पूछने वाला नहीं है, इसको कोई भी डांटता नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे विश करता है, आई विश आई वर अ गार्डनर digging away at the garden with nobody to stop me from digging. अब बच्चा बोलते हैं कि आई विश कि मैं भी एक क्या होता, गार्डनर होता, मैं कहीं पर भी अपनी मर्जी से गार्डन को खोदता, मेरे कपड़े गंदे होते या मेरे साथ मेरे कपड़े गंदे होते या मेरे कपड़े गीले होते पसीने से या बारिश से, और मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होता। अब बच्चे को लग रहा है कि इस गार्डन के भी बहुत मजे हैं, ये भी अपनी लाइफ में बहुत फन करता है, मिट्टी से कपड़े गंदे करता है, कहीं पर भी मिट्टी को डिग करता है, राइट। तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है ना, जब बच्चे हम कभी भी बाहर जाते हैं तो उनकी मदर उनको ऑलवेज बोलती है कि बाहर मत जाओ, धूप में मत जाओ, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, राइट। तो बच्चे को लगता है कि मेरी लाइफ में काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरी लाइफ में मुझे तो काफी लोग टोकने वाले हैं मेरे घर में, लेकिन गार्डनर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। Just as it gets dark in the evening and my mother sent me to bed. अब देखो, पहले तो सुबह उसको हॉकर मिला जब वो स्कूल जा रहा था, अब स्कूल से जब वापिस आए तो उसको कौन मिला, गार्डनर मिला। तो अभी बच्चा जो है, उसकी मम्मा जो है उसको सोने के लिए भेज रही है, राइट। I can see through my open window the watchman walking up and down. अब जब उसकी मम्मा ने, बच्चे की मम्मा ने उसको सोने के लिए भेजा तो उसको विंडो से क्या दिखा कि एक वॉचमैन है जो ऊपर नीचे जा रहा है, राइट। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. अब बच्चा देख रहा है कि एक जो वॉचमैन है, एक मतलब काली सुनसान, एक अंधेरी सुनसान से एक गली है, तो एक वॉचमैन उसमें जा रहा है, आ जा रहा है। तो बच्चा देख रहा है कि वो जो उस गली में एक स्ट्रीट लैंप खड़ी है और वो उसको ऐसे लग रही है जैसे कि कोई जायंट खड़ा है विद रेड ब्लड आई इन इट्स हेड। ये कि जैसे कोई मतलब उसने अब उसको जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट जो लैंप है, उसने उसको कंपेयर किया है एक जायंट के साथ, राइट। जायंट होता है जैसे कोई बहुत बड़ी बॉडी वाला, कोई विशाल काय, कोई जिन टाइप, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि जैसे वो जो लैंप जो है, उसको लग रहा है कि जो लैंप जो जल रही है, रेड लाइट वाली जो लैंप जल रही है, उसको ऐसे लग रहा है किसी जायंट के हेड में कोई एक
मतलब रेड ब्लड आई है, तो उसको ये कंपेयर कर रहा है जायंट को किसके साथ, स्ट्रीट लैम्प के साथ। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at its side. अब जो वॉचमैन है वो क्या कर रहा है, वॉचमैन के हाथ में जस्ट लाइक दिस एक लैंटर्न है, एक लालटेन है, और वो जब चल रहा है तो जो लालटेन है वो भी स्विंग हो रही है, राइट। तो बच्चे को लग रहा है कि मतलब ये जो वॉचमैन है इसको भी कितना मजा है, इसको रात को सोना नहीं पड़ता, और ये रात में सुनसान गली में ऊपर नीचे जा रहा है विद इस लैंटर्न, और इसकी शैडो भी इसके साथ चल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और बच्चों को लगता है कि मुझे तो मेरी मम्मा जल्दी ही सोने के लिए भेज देती हैं, लेकिन इस वॉचमैन के मजे हैं ये कभी भी रात को सोता नहीं है। सो आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट एंड चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न। बच्चा यहाँ पे विश करता है, बोलता है कि काश मैं एक वॉचमैन होता, मुझे रात को सोना नहीं पड़ता, और मैं पूरी रात गली में घूमता और अपनी शैडो को चेज करता, राइट। सो ये थी हमारी पोम वोकेशन। तो इसमें क्या है कि एक इनोसेंट बच्चे की एक इमेजिनेशंस है, उसको ये लगता है कि मेरी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, और मुझे काफी सारे मेरे घर के जो भी लोग हैं वो मुझे मतलब बोलते हैं, मुझे काफी वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मुझे वो रात को जल्दी सोने के लिए भेज देते हैं, मुझे वो गार्डन में मिट्टी के साथ खेलने नहीं देते हैं, और मेरा एक फिक्स टाइम है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, मुझे सेम रोड फॉलो करना है, मुझे सेम जगह स्कूल जाना है। और उस बच्चे को क्या है कि उसके बच्चों को लगता है कि ये जो गार्डनर है, ये जो हॉकर है और ये जो वॉचमैन है, इनकी लाइफ में बहुत मजा है, इनकी लाइफ में बहुत ही फ्रीडम है, ये कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, रात को मतलब सोते हैं, नहीं सोते हैं। और गार्डनर जो है ये क्या करता है, ये मतलब मिट्टी से भी ये इसके कपड़े गंदे होते हैं, ये धूप में बारिश में इसके कपड़े गीले होते हैं, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं बोलता। बट बच्चे को ये पता नहीं है कि इन सब लोगों के पीछे इन सब लोगों की जो लाइफ है वो कितनी स्ट्रगल, कितनी डिफिकल्टी और कितनी हार्ड वर्क से भरी हुई है। सो the main idea of the poem is, the poem shows the thoughts and imaginations of a small child. The child watches a hawker, a gardener and a watchman and feels that their lives are free and enjoyable. अब बच्चे को यही लगता है कि ये जो हॉकर्स हैं, गार्डनर्स हैं, ये जो वॉचमैन हैं, इनकी लाइफ बहुत फ्री है और इनकी लाइफ में बहुत मजा है। He wishes to become like them because he thinks they have no strict rules to follow. The poem highlights a child's love for freedom, curiosity and innocent imagination. तो ये पोएम क्या बताती है, ये पोएम हाईलाइट करती है एक बच्चे का प्यार किसके प्रति, फ्रीडम के लिए, और क्यूरियोसिटी एंड इनोसेंट इमेजिनेशंस इस पोएम में बच्चे के आपको देखने को मिलती हैं। सो लेट्स मूव टू डिफिकल्ट वर्ड्स। गॉन्ग, गॉन्ग इज अ लार्ज बेल, बड़ी वाली घंटी जो स्कूल्स में होती है या कहीं घंटा घरों में होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ गॉन्ग। एंड हॉकर, अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स ऑन द स्ट्रीट। हॉकर्स क्या होते हैं, जो गली में गली गली जाते हैं और अपनी चीजों को बेचते हैं, लाइक बैंगल सेलर, बैलून सेलर, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, दीज आर ऑल हॉकर्स। लेन, लेन क्या होती है, गली। अ नैरो रोड आर स्ट्रीट्स। स्पेड, स्पेड क्या होता है, अ डिगिंग टूल, मिट्टी को खोदने वाला जो टूल होता है, दैट्स कॉल्ड स्पेड। सॉइल हिज क्लोथ्स, मेक हिज क्लोथ्स डर्टी। सॉइल हिज क्लोथ्स क्या होता है कि जब हम कपड़े जो है वो गंदे जब होते हैं उसको बोलते हैं सॉइल हिज क्लोथ्स। टेक्स हिम टू टास्क, स्कॉल्ड्स हिम, राइट। गेट्स बेक्ड इन द सन, गेट्स वेरी हॉट। जाइंट, वेरी बिग पर्सन आर थिंग, जब कोई बहुत बड़ी बॉडी वाला जो इंसान है उसको हम बोलते हैं जाइंट। सो लेट्स मूव टू पोएटिक डिवाइसेस। सो पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस एक ऐसे टूल्स होते हैं जो कि पोइट्स अपनी पोइट्री में यूज करते हैं, सो दैट कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी पोइट्री है, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव बने, वो ज्यादा म्यूजिकल बने या फिर इंटरेस्टिंग। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम। सो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज repetition. So here in this poem, I wish I were is repeated many times. So पहला जो poetic device इस poem में हुआ है वो है repetition. So imagery, imagery क्या होती है कि जब आप poem पढ़ते टाइम जब आपके माइंड में कोई एक क्लियर पिक्चर सी बन जाती है, that's called imagery. So
जब आप इस पोइम को पढ़ रहे थे तो आपके माइंड में गार्डनर की पिक्चर भी आई होगी, हॉकर की भी आई होगी, वॉचमैन की भी आई होगी, या फिर अ लेन इज डार्क एंड लोनली, कि एक गली है सुनसान सी और डार्क सी गली है, उसकी भी पिक आपके माइंड में जरूर आई होगी। सो सेकंड जो पोइटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है वो है इमेजरी, एंड थर्ड इज सिमली। तो सिमली क्या होती है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एज स्वीट एज हनी, या फिर इट इज एज बिटर एज करेला, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि किसी की स्वीटनेस को आप शुगर के साथ कंपेयर कर रहे हो, या फिर किसी की बिटरनेस को आप बिटर गॉड यानी कि करेला के साथ आप कंपेयर कर रहे हो यूजिंग लाइक और एज। सो दीज आर सिमिलीज। तो इस पोम में जो सिमिलीज यूज हुई हैं वो यहाँ पे हुई है। द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन हिज हेड, कि वो जो स्ट्रीट लैम्प को यहाँ पे कंपेयर किया है जायंट के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक वर्ड को यूज करते हुए। सो थर्ड जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है वो है सिमिली। सो लेट्स रिकैप थ्रू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हु रोट द पोम वोकेशन? सो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर रोट दिस पोम। What was the child doing at 10 o'clock? बच्चा क्या कर रहा था? 10 बजे जब घंटी बजती है तो बच्चा क्या कर रहा था? He was going to school. Whom did the child see in the street first? तो बच्चे ने गली में सबसे पहले किसको देखा? He saw a hawker selling bangles. सबसे पहले बच्चे ने हाकर को देखा था जो कि बैंगल्स बेच रहा था। Why did the child want to become a hawker? अब बच्चा हाकर क्यों बनना चाहता है? Because the hawker could roam freely एंड सेल थिंग्स हैप्पीली। अब बच्चा जो है वो इसलिए हॉकर बनना चाहता है क्योंकि हॉकर अपनी मर्जी से कहीं पर भी किसी भी रोड किसी भी गली आ जा सकते हैं, और ना तो उनको किसी बात की जल्दी होती है और उनको घर आने का भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता और घर से जाने का भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो इसलिए बच्चा जो है वो क्या बनना चाहता है? एक हॉकर। सो where did the child see the gardener? अब बच्चे ने गार्डनर को कहाँ देखा था? He saw the gardener digging the ground. बच्चे ने गार्डनर को कहाँ देखा था? वो एक ग्राउंड डिग कर रहा था तो वहां पे उसने गार्डनर को देखा था। Why did the child wish to become a gardener? अब बच्चे ने ये विश क्यों की थी कि मुझे काश कि मैं गार्डनर बन जाऊं? Because the gardener worked freely without being scolded. क्योंकि बच्चे गार्डनर को बिना किसी के डांट डपट के वो अपने कपड़े भी गंदे करता है, वो जगह भी खोदता है, वो कुछ भी बारिश में भी वो रहता है, वो धूप में भी रहता है, तो उसको कोई भी स्कॉल्ड नहीं करता, कोई भी डांटता नहीं है। तो सो इसलिए he wishes to become a gardener. Why did the child who walked the streets at night? अब रात को गलियों में कौन जा रहा था? कौन जाता है? The watchman walked the street at night. वॉचमैन जो था वो गली में रात को जा रहा था। What did the watchman carry? वॉचमैन ने क्या लिया हुआ था अपने साथ? He carried a lantern. उसने एक लैंटर्न ली थी, लालटेन उसने अपने साथ एक ली थी। Why did the child want to become a watchman? अब बच्चा वॉचमैन क्यों बनना चाहता था? Because the watchman stayed awake all night and moved freely. क्योंकि जो वॉचमैन था वो रात को जागता रहता है और वो भी फ्रीली आ जा सकता है, so that जो वॉचमैन है उस पर भी किसी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बच्चे को लगता है कि वो भी, मुझे तो रात को जल्दी सोना पड़ता है, लेकिन वॉचमैन तो पूरी पूरी रात जागता है और कहीं पर भी वो मूव कर सकता है, इसलिए बच्चा विश करता है कि वो एक गार्डनर बन जाए। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोम? अब इस पोम का मेन थीम क्या है? द पोम शोज अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड डिजायर फॉर फ्रीडम। अब ये जो पोम है ये एक बच्चे की इमेजिनेशन शो करती है और बच्चे की डिजायर शो करती है फ्रीडम के लिए। सो स्टूडेंट्स, this was our poem Vocation. I hope you understood it well. So thank you.